बहुत धन्यवाद। और अब मैं हमारे माननीय डिग्निटरीज से अनुरोध करूंगी कि वे मंचासीन हो जाएं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री शिंगो हानाडा, President and CEO Kubota Corporation, Japan, to kindly address the gathering and share his perspective on this important partnership. May I invite Shri Shingo Hanada, President and CEO Kubota Corporation Limited, कि वे इस निवेश और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी साझेदारी के अनुभव एवं भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। Ladies and gentlemen, we welcome with a huge round of applause Shri Shingo Hanada, President and CEO Kubota Corporation, Japan. Shingo-san, it is over to you now. Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Honorable Union Ministers, Honorable Ministers of the State of UP, His Excellency, the Governor and the Vice Governor of Yamanashi Prefecture, Chief Director General of JETRO, delegates from Japan, members of our Board of Directors, and colleagues from Escorts Kubota. Ladies and gentlemen, it is a great honor and pleasure to mark this significant milestone in the journey of Escorts Kubota Limited with the groundbreaking of our new manufacturing facility. I would like to express my heartfelt gratitude to the Government of India, the Government of Uttar Pradesh, CEOs of Invest UP and YEDA, and everyone whose support and cooperation have made this important milestone possible. Honorable Chief Minister, under your dynamic leadership, UP has emerged as one of India's fastest growing centers for industrial development. Our investment here reflects our long-term belief in the immense potential of Uttar Pradesh and its vision of becoming a $1 trillion economy. This milestone is significant for the entire Kubota Group. For more than 135 years, Kubota has remained committed to improving people's lives and contributing to society. Guided by our philosophy for Earth, for life, we continue to work towards a better future for people and our planet. Our journey in India has been strengthened through our partnership with Escorts and the Nanda family, an institution that has served India for more than 8 decades and has played a pioneering role in the mechanization of Indian agriculture. Under the leadership of Mr. Nikhil Nanda, this partnership has continued to deepen with a shared ambition to build Escorts Kubota for the future. So on behalf of Kubota Corporation, I extend my sincere appreciation to all those who have made this vision possible. Arigatou gozaimasu. Dhanyabad. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Thank you, sir. Arigato gozaimasu. Thank you so much, sir, for your insightful address and for reaffirming Escorts Kubota's continued commitment to India and to Uttar Pradesh. Your words reflect the strength of a partnership built not only on investment but on shared growth, innovation, and a long-term vision for the future.
और देवी और सज्जनों, इसी के साथ इस महत्वपूर्ण निवेश और उत्तर प्रदेश में ऑटोमोटिव विनिर्माण के विस्तार के दृष्टिकोण को उद्योग जगत के नेतृत्व से सुनेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहती हूं श्री आकाश मिंडा जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, कि वे इस निवेश उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति और भविष्य में खुलने वाली नई संभावनाओं पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। लेट्स वेलकम हिम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, श्री आकाश मिंडा जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, कतारो नागासाकी-सान, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार जेट्रो के उपस्थित सभी अतिथिगण एवं उपस्थित सभी मान्यगण, नमस्कार। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फॉर आवर प्लांट टुडे इन जेडा। आज उत्तर प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है, नए अवसरों का प्रदेश है और सबसे खास तौर पर इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देने वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इज बिल्डिंग नॉट जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन्वेस्टर एंड इंडस्ट्रियल कॉन्फिडेंस। मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने जेवर में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार किया है। हमें एक्सप्रेसवे मिले, फ्रेट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मिले, वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल पार्क्स, स्किल्ड मैन पावर और स्मार्ट टाउनशिप्स, और हाल ही में एक वर्ल्ड लीडिंग एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके लीडरशिप में हमने सोच को सच होते देखा है। मैं आकाश मिंडा स्पार्क मिंडा ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हूं और हम एक ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम करते हैं और उत्तर प्रदेश में 40 वर्षों से ज्यादा मौजूद हैं। आज हम 9,000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। उत्तर प्रदेश फॉर अस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट एट स्पार्क मिंडा एंड वी आर कमिटेड टू एक्सपैंडिंग आवर प्रेजेंस हियर एट मच लार्जर स्केल। सर, हम यहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी, मोटर पार्ट्स, ईवी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर के क्षेत्रों में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाले हैं। डीपर लोकलाइजेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के हम जापानीज कंपनी के साथ हम काफी पार्टनरशिप कर रहे हैं और इन इन्वेस्टमेंट्स के साथ हम 6 से 8,000 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट देना चाह रहे हैं। फॉर आवर फ्रेंड्स फ्रॉम जापान एंड इंडस्ट्रीज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, I would like to say that this is the investment opportunity in Uttar Pradesh is extremely promising. While Japan brings in world-class technology, global quality and precision manufacturing, Uttar Pradesh offers scale, talent, infrastructure, policy support and large market and increasingly business-friendly environment. And Indian companies like ours bring local capability, customer understanding and willingness to grow. This is an opportunity we all must seize. हमें उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहिए और हम स्वयं भी यहां और बड़े स्केल पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारे उद्देश्य सिर्फ बिजनेस ग्रोथ ही नहीं बल्कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देना है और विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना योगदान देना है। एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अतिथिगण और यहां उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आइए हम सब मिलकर यूपी जापान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन को एक सफल मुहिम बनाएं और उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट का एक लीडिंग डेस्टिनेशन बताएं। धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमासु। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मिंडा जी। आपने उत्तर प्रदेश में आए परिवर्तन को एक निवेशक और उद्योग जगत के दृष्टिकोण से हमारे सामने रखा और विशेष रूप से यह विश्वास भी व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश आज न केवल इंडस्ट्री फ्रेंडली बल्कि इन्वेस्टर और बिजनेस फ्रेंडली राज्य के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी, मोटर पार्ट्स, ईवी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजाइन डेवलपमेंट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति और अधिक विस्तारित करने की आपकी प्रतिबद्धता निश्चित रूप से इस साझेदारी के उज्जवल भविष्य का संकेत है। बहुत धन्यवाद आपका। And with that, ladies and gentlemen, we've come to a very important moment in this inaugural program. देवी और सज्जनों, आज हमने उन अवसरों के बारे में जाना जो हमें एक साथ लेकर आए हैं, उन निवेशों के बारे में सुना जो अब आकार ले रहे हैं और
उन साझेदारियों की संभावनाओं को भी देखा जो आने वाले समय में नई उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। लेकिन हर परिवर्तन के पीछे एक दृष्टि होती है, एक विजन होता है, एक ऐसी दृष्टि जो आकांक्षाओं को दिशा देती है और अवसरों को कार्य रूप देने का विश्वास पैदा करती है। और आज हमें उस नेतृत्व को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है जो उत्तर प्रदेश की इस विकास यात्रा को दिशा दे रही है। ऐसा नेतृत्व जिन्होंने स्पष्ट उद्देश्य, निर्णायक कदम और उत्तर प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को प्रदेश की प्रगति के केंद्र में रखा है। मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को कि वे इस विशिष्ट सभा को संबोधित करें। आपसे अनुरोध है कि सभागार को संबोधित करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टमेंट मीट के आज के इस उद्घाटन सत्र में यहां पर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेल, इंफॉर्मेशन मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, भारत सरकार के कृषि किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हिज एक्सेलेंसी गवर्नर ऑफ नागासाकी मिस्टर काटोरो नागासाकी, वाइस गवर्नर यामानाशी, उत्तर प्रदेश शासन के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री ए के शर्मा जी, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के मिनिस्टर श्री सुनील कुमार शर्मा जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, जेट्रो के चेयरमैन एंड सीजीएम, यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट से जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स, इंडस्ट्री सीईओज, जापान के नागासाकी से आए हुए सभी हमारे इस डेलीगेशन के साथ जुड़े हुए सभी उपस्थित हमारे अतिथिगण, उपस्थित महानुभाव, यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज हम भारत की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश और जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के मध्य साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यहां पर एकत्र हुए हैं। यह पार्टनरशिप, ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इन्वेस्टमेंट
और शेयर्ड विजन के स्ट्रांग फाउंडेशन पर निर्मित है। मैं इस अवसर पर यामानाशी प्रीफेक्चर के ऑनरेबल गवर्नर को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कल उनका जन्मदिन था। यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस विशेष अवसर पर वे हमारे बीच में उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और निरंतर सफलता की हृदय से कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि उनकी यात्रा यामानाशी और उत्तर प्रदेश के मध्य संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेगी। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि भारत और जापान के अग्रणी उद्योग प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं। स्कॉट्स कोबोटो लिमिटेड के सीएमडी श्री निखिल नंदा, होंडा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इंडिया के प्रेसिडेंट एवं सीईओ श्री जोशी मोराकामी, डेंसो इंटरनेशनल इंडिया के श्री संजय भार्गव, एसएफ 1 टाटा समूह के सीईओ श्री दीपक मुगलाहल्ली, तामिंडा कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक श्री आकाश मिंडा जैसे प्रतिष्ठित इंडस्ट्री लीडर की उपस्थिति इस इन्वेस्टमेंट मीट को और भी गरिमामयी बना रही है।